ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی، محبت اور نفرت کے تصادم، نیکی اور بدی کی کشمکش کی داستان۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تلسماتی دنیا کی آپ بیتی، ایپیسوڈ نمبر 31۔ اگلے روز دونوں پارٹیوں کے آدمی ایک ایک دو کر کے مختلف اطراف سے جاگیر سے نکلے۔ 6 اونٹوں پر حمید اللہ کے گودام سے جو اس نے وہاں بنا رکھا تھا، گندم اور دالوں کی بوریاں لادی گئیں۔ 1 اونٹ پر خالی بوریاں رکھی گئیں۔ 2 آدمی ان اونٹوں کو ساتھ لے کر کسی اور طرف چل پڑے۔ میں ایک گھوڑے پر بیٹھا، میرے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی اور میں اس انداز سے نکلا جیسے میں شکار پر جا رہا ہوں۔ وہاں ہمیں دیکھنے والا حمید اللہ کے مزاروں ان کی عورتوں اور بچوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس زمانے میں آبادیاں بہت کم تھیں، گاؤں دور دور تھے۔ ان تمام ڈاکوؤں کو ایسے راستے معلوم تھے جن کے دور دور تک کسی گاؤں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ تجربے کار تھے، اپنی شناخت چھپانے کے بھی ماہر تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ عام شہریوں کو اس قسم کے ڈاکوؤں کے متعلق اتنا ہی معلوم ہوگا کہ وہ بڑے وحشی اور اجڑ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی دنیا میں جا کر دیکھیں تو آپ کی رائے بدل جائے۔ میں ان لوگوں میں خاص قسم کی میں نے ذہانت دیکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی عقل کسی اور طرف استعمال ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں عقل خیر معمولی ہوتی ہے۔ میں نے ان کی عقل میں یہ باریکی دیکھی تو مجھے خطرہ سا محسوس ہونے لگا کہ انہیں عین موقع پر پتہ چل جائے گا کہ یہ پھندا ہے اور یہ سب مل کر میرے جسم کا کیما بنا دیں گے۔ میں تنہائی محسوس کرنے لگا۔ آخر ہم جائے واردات پر پہنچ گئے۔ یہاں میں نے حمید اللہ کی عقل کی داد دی۔ اس نے واردات کی جگہ کا انتخاب نہایت اچھا کیا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ پہاڑیاں زیادہ اونچی نہیں تھیں، ان پر درخت بھی تھے اور کہیں کہیں اونچی گھاس بھی تھی۔ ارد گرد یا اس علاقے کے اندر کوئی چھوٹا سا گاؤں بھی نہیں تھا، بالکل ویرانہ۔ چھپنے کی جگہ ایسی تھی کہ میں جب وہاں پہنچا تو میں یہ سمجھا کہ مالوے اور کھادے کا کوئی بھی آدمی ابھی نہیں آیا۔ میں شکاریوں کے روپ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چھوٹا سا ایک پتھر میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں کے قریب گرا، جس سے گھوڑا ذرا سا بدک گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی انسان نظر نہ آیا۔ پھر ایک اور پتھر آیا جو میرے گھوڑے کی گردن پر لگا۔ اب میں نے ہر طرف دیکھا تو مجھے ایک سر نظر آیا۔ پھر ایک اور سر ایک ٹیکری کے پیچھے سے ابھرا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سب پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مالوا اور کھادا میرے پاس آئے۔ وہ مجھے 2 چٹانوں کے درمیان لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سب لوگ کہاں ہیں؟ اوئے کاکا، مالوے نے کہا، آدمی وقت پر سامنے آیا کرتے ہیں، آدمیوں کی نمائش نہیں کی جاتی۔ مجھے اب ایک اور خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس کی خاصی نفری پہنچ جائے گی۔ خطرہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے علاقے پر نظر رکھنے کے لیے کوئی آدمی کہیں بلندی پر بٹھا رکھا ہوگا۔ میں نے بہت سوچا کہ ان لوگوں نے اگر ایسا انتظام کر رکھا ہے تو انہیں کہہ کر کچھ گڑبڑ کرا دوں، لیکن میں اس لیے ایسا کوئی مشورہ نہیں دیتا تھا کہ مجھ پر ہی شک نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی خطرہ تو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ سورج افق کی طرف جا رہا تھا۔ جاتے جاتے سب سے اونچی پہاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ کھادے نے کہا کہ ریلوے لائن پر بڑے بڑے پتھروں کی دیوار کھڑی کرنی ہے، وہ فوراً شروع کر دی جائے۔ مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ یہ مین لائن تھی، ریل گاڑیاں دونوں طرف سے آتی جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہم اگر وقت سے پہلے لائن کو پتھروں سے بند کر دیں اور دوسری طرف سے کوئی ریل گاڑی آ جائے تو وہ رک جائے گی، اور جب تک یہ ریل گاڑی اگلے اسٹیشن پر نہیں پہنچے گی وہاں سے ریل کار نہیں چلے گی۔
ये थोड़ा सा इलाका था जिसमें रेलवे लाइन अभी डबल नहीं बनी थी। ये ख्याल आते ही मैंने खादे से कहा, अभी लाइन रोकने का बंदोबस्त ना करो। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे यह ख्याल आ गया था। 5-7 मिनट ही गुजरे होंगे कि दूर से हमें स्याह धुआं उठता हुआ नज़र आया और रेल का गाड़ी की हल्की हल्की गड़गड़ाहट भी सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद एक मुसाफिर गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार से आती हुई नज़र आई। मैं और खादा वगैरह पहाड़ों के अंदर हो गए। रेलगाड़ी तूफ़ान की तरह गुजर गई। उसके बाद मैंने खादे वगैरह से कहा कि अब रेलवे लाइन पर पत्थर रख दो। इतना तो मैं जानता था कि जब तक ये रेलगाड़ी अगले स्टेशन पर नहीं पहुंचेगी तब तक ना उधर से रेल कार आएगी ना इधर से कोई और गाड़ी जाएगी। खादे के पुकारने पर 7 आदमी सामने आ गए। फिर उसके कहने पर वो बड़े बड़े पत्थरों को लाने लगे। आधे घंटे तक उन्होंने रेलवे लाइन पर 2 फुट से ऊंची दीवार खड़ी कर दी जो पटरी से बाहर शुरू होकर दूसरी तरफ पटरी के बाहर ख़त्म होती थी। उस दीवार की चौड़ाई भी 2 फुट के ही लगभग थी। दीवार से 15-20 कदम पर लाइन का मोड़ था। मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि पुलिस फोर्स अपने मकाम पर पहुंची है या नहीं, या पहुंच भी सकेगी या नहीं। मुझे अब ये धड़का लगा हुआ था कि मालवा और खादा फंदे में फंसते हैं या मैं। हमीदुल्लाह ने रेल कार के गुजरने का जो वक़्त बताया था उसमें कुछ मिनट ही बाकी थे। मालवा और खादा मेरे साथ थे। अब तुम संभालो चचा, मैंने मालवा से कहा। अब हम तुम्हारे हुक्म पर चलेंगे। हुक्म कैसा? मालवे ने कहा। डब्बा आएगा और रुक जाएगा। ड्राइवर ने पत्थर ना देखे तो उनके साथ टकरा कर रुक जाएगा, फिर सब उस पर धावा बोल देना। दूर से एक विसल सुनाई दी। ये रेल कार ही हो सकती थी। रेलगाड़ियों के इंजनों की विसल कुछ और तरह की होती थी। मालवे ने अपने साथियों को तैयार होने के लिए पुकारा। उन पहाड़ियों में सिर्फ आदमी ही नहीं, घोड़े और ऊंट भी छुप गए थे। मैंने अपने लिए एक जगह मुंतखब कर ली। मुझे मालूम था कि यहाँ गोलियाँ चलेंगी और बेतरह चलने वाली गोलियों से बचना आसान नहीं होगा। फिर ऐसे हुआ जैसे एक बड़े ही खौफनाक मंजर का पर्दा उठ गया हो। ये मंजर इस तरह शुरू हुआ कि मोड़ पर आकर रेल कार की विसल एक चीख की तरह सुनाई दी। उसके फ़ौरन बाद ड्राइवर ने पत्थरों की दीवार देखकर इतनी सख्त ब्रेक लगाई कि पहियों की चीखें सुनाई दी। रेल कार अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी कि पहाड़ियों के दोनों तरफ से डाकू निकले। मैंने इतना देखा कि रेल कार की तमाम खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे। डाकुओं ने रेल कार के ड्राइवर और फौजियों वगैरह को डराने के लिए हवाई फायर किए। मालवे और खादे के आदमी रेल कार से अभी 2-4 कदम दूर ही थे कि छोटी सी उस रेल कार की खिड़कियों के तमाम शीशे उतर गए। हर खिड़की में से राइफलें बाहर आईं और उन राइफलों ने डाकुओं पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उनमें 2 मशीन गन्नें भी थी। डाकुओं में ऐसी हड़बूंग मची कि वो चीखने और चिल्लाने लगे और भागने भी लगे। मैं घोड़े से उतरकर ज़रा बुलंद जगह चढ़ गया था जहां कोई गोली नहीं पहुंच सकती थी। मैंने देखा कि डाकू गिरते और तड़पते थे। मैंने मालवे को भी और खादे को भी गिरते देखा। दोनों के सीनों से खून के चश्मे की तरह फूटा। दोनों को शायद मशीन गन की गोलियां लगी थीं। उन्हें तड़पने की मोहलत ना मिली। मेरे अकब में एक धमाका हुआ। ऊपर से सब्ज़ रोशनी का छोटा सा गोला नीचे आने लगा। ये रोशनी राउंड था जो रात को फायर किया जाता है। सूरज अभी अभी गरूब हुआ था। अभी रोशनी थी। रोशनी राउंड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सब्ज़ राउंड पुलिस फोर्स ने चिल्लाया था, जो रेल कार के फौजियों के लिए इशारा था कि हम आ गए हैं। पुलिस की अच्छी खासी नफरी इतनी खूबी से करीब ही कहीं छुपी हुई थी। फायरिंग शुरू होते ही ये नफरी आ गई। उस नफरी ने जाए वारदात को घेरे में ले लिया और सिपाही तेज़ी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जिसे वो गिरफ्तार करते। ज़्यादातर डाकू मारे जा चुके थे। जो शदीद ज़ख्मी थे वो मर रहे थे। सिर्फ 2 डाकू ऐसे निकले जिन्हें एक एक गोली इस तरह लगी थी कि उनके मरने का कोई इम्कान नहीं था।
उनके जख्मों पर पुलिस के सिपाहियों ने कपड़े लपेट दिए। मैं ये देखकर हैरान हुआ और खुश भी कि 60 सिपाहियों की इस पुलिस फोर्स का कमांडर अयूब था, जो अब सब इंस्पेक्टर हो चुका था। उसने मुझे गले लगा लिया। सिकंदर, उसने जोशीले लहजे में कहा, तुमने दिल खुश कर दिया। तुमने सर्विस की इब्तिदा इतने बड़े कारनामे से की है जो तुम्हारे मुस्तकबल को रोशन कर देगा। तुम पुलिस के बहुत बड़े अफसर बनोगे। मैं फ़ख्र से सबको बताऊंगा कि सिकंदर मेरे शहर का लड़का है। उसने आहिस्ता से मुझसे पूछा, नवाबज़ादा कहाँ है? वो तो घर में है, मैंने जवाब दिया और उसके कान में कहा, अयूब भाई, आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा। शहनाज भी वहीं है। कौन सी शहनाज? वही आपकी शहनाज, मैंने कहा। उसे यहाँ से निकालना है। वो यहाँ किस तरह पहुँच गई? अयूब ने पूछा। क्या नवाबज़ादे ने उसे बेगम बना लिया है? नहीं, मैंने जवाब दिया। बेगम तो नहीं बनाया, लेकिन उसे बेगमों से ऊंचा दर्जा दे रखा है। आखिर अपने शहर की औरत है। वो यहाँ ना होती तो मैं शायद अपना मिशन इतनी आसानी से पूरा ना कर सकता। कहीं उसे ना पकड़वा देना। बचा लूँगा यार, अयूब ने आंख मार कर कहा। कुछ दिन अपने पास रखूँगा, फिर उसे घर छोड़ आऊँगा। ये तो तुमने मेरी मौज बना दी है। ज़्यादा बातें करने का वक्त नहीं था। ज़ख्मी डाकुओं को अयूब ने कहा और वो फ़ौरन बोल पड़े, वरना उनके ज़ख्मों से पट्टियाँ उतार दी जाएंगी और उन पर नमक छिड़केंगे। दोनों ने कह दिया कि वो पूरा बयान देंगे। अभी इतना ही कहेंगे कि उन्होंने रात नवाबज़ादा हमीदुल्लाह ख़ान के यहाँ गुजारी थी और ये सारी वारदात उसी ने कराई थी, और उसके साथ एक बड़ा खूबसूरत जवान था जो किसी वक्त ताजे डाकू के साथ रहा था। उनके ये बयान मुझे अयूब ने सुनाए थे। मैं उस वक्त एक तरफ हो गया था। सुल्तान भी उस पुलिस फोर्स के साथ आया था। डीएसपी क्लार्क ने उस फंदे को मुकम्मल तौर पर मुहलक बनाने के लिए बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की थी। मेरी उस इतला पर जो मैंने सुल्तान के ज़रिए भेजी थी, डीएसपी ने खुद जाकर ये इंतज़ाम किया कि रेल कार में ख़जाने की बजाय कमोबेश 40 फ़ौजी भरकर रेल कार भिजवा दी। ड्राइवर को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। वो बार बार इसलिए विसलें देता आ रहा था कि डाकुओं को पता चल जाए कि रेल कार आ रही है। पुलिस फोर्स भागने वाले डाकुओं को घेरे में लेने के लिए पीछे छुपी हुई थी। सिकंदर भाई, सब इंस्पेक्टर अयूब ने मुझे कहा, नवाबज़ादे की जागीर के करीब जाकर मैं तुम्हें हथकड़ी लगा लूँगा ताकि उसे ये शक ना हो कि ये सब तुम्हारी कारस्तानी है। अयूब भाई, मैंने कहा, ये आपका काम है, जो जी चाहे करें। मैं एक बार फिर कहूँगा, शेख शहनाज को इस चक्कर से पहले ही निकाल लेना। निकाल लूँगा यार, अयूब ने बदमाशी के लहजे में कहा। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए तो ज़रूर निकालूँगा, लेकिन एक ख्याल रखना, मैंने कहा। अब शहनाज वो शहनाज नहीं रही। अगर मुझे किसी ने यह खबर सुनाई कि शहनाज ने सब इंस्पेक्टर अयूब का पेट चाक कर दिया है तो मुझे ज़रा भी हैरत नहीं होगी। मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। देखा जाएगा यार, अयूब ने कहा। उस हीरे को कानून के हवाले नहीं करूँगा। मैं और सब इंस्पेक्टर अयूब ज़रा बुलंद जगह खड़े बातें कर रहे थे। शहनाज के साथ मुझे ऐसी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी कि मैं अयूब से कहता कि शहनाज को गिरफ़्तारी से बचा लेना। उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था कि वो डाकुओं की साथी है। वो इस वारदात में शामिल भी नहीं थी, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी लाजमी थी। उसे गिरफ़्तार करके शामिल तफ्तीश करना था, और उसमें शहनाज जैसी दिलकश लड़की के लिए बहुत खराबियाँ थीं। मुझे शहनाज से मोहब्बत तो नहीं थी। मैंने तो उसे डाकुओं से ख़राब कराने का इरादा किया था, लेकिन अयूब ने जब उसके मुतल्लक बदनीति की बातें की और उसने खुशी का इजहार किया कि उसे शहनाज मिल गई है, तो मुझे अयूब पर गुस्सा सा आने लगा। मैं अपने आप को शहनाज का मुहाफ़िज़ समझने लगा था और कुछ ऐसा एहसास बेदार हो गया जैसे शहनाज की आबरू मेरी आबरू हो। ऐसा क्यों हुआ, मैं समझ नहीं सका। मैं आज भी इसका जवाब नहीं दे सकता कि मेरे दिल में शहनाज की इतनी हमदर्दी क्यों पैदा हो गई थी। मैं तस्लीम करता हूँ कि शहनाज को मैं बहुत खूबसूरत लड़की समझता था। मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ देखी थीं, लेकिन शहनाज की आंखों में, उसके चेहरे और सरापे में जो तासुर था, वो मैंने आज तक उससे ज़्यादा हसीन लड़कियों में भी नहीं देखा।
शहनाज को देखकर तो पत्थर भी मोम हो जाते थे, ताजा भी तो पत्थर ही था। उसने मुझे पहला सबक ये दिया था कि औरत से दूर रहना, लेकिन शहनाज उसके सामने आई तो ये पत्थर टूट गया। टूटा भी ऐसा कि दोस्तियां टूट गईं और दोस्तों ने एक दूसरे का खून बहा दिया। ताजी ने शहनाज से प्यार की भीख मांगी थी। नवाबजादा हमीदुल्ला खान के लिए खूबसूरत लड़कियों की क्या कमी थी, लेकिन वो तो ऐसे लगता था जैसे शहनाज ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था और वो उसकी उंगलियों पर नाचता। ये शहनाज के सरापा का तासुर था। मैं शहनाज को लड़की कह रहा हूँ, वो तो उस वक़्त 27 साल की औरत बन चुकी थी, लेकिन लगती मुझसे छोटी थी। अगर कोई मुझे कहे कि मैं उसके हुस्न का असीर हो गया था तो शायद मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं इकरार भी नहीं करूँगा। अलबत्ता उसने अपने दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर ली थी, जिसका रंग पहले कुछ और था, मगर अब उसने पाकीज़गी पैदा कर ली थी। मेरे दिल में उसकी पाकीज़गी की कदर ज़रूर थी। जो कुछ भी था, मुझे उससे इनकार नहीं कि शहनाज के साथ मेरी वाबस्तगी सी पैदा हो गई थी, और मैं उसे गिरफ़्तारी से और शामिल तफ्तीश होने से नहीं, बल्कि सब इंस्पेक्टर अयूब की हवसकारी से भी बचाना चाहता था। अयूब मेरे पास खड़ा था। वो बहुत खुश था। एक खुशी तो ये थी कि उसका ऑपरेशन कामयाब रहा था, और दूसरी खुशी ये कि उसे शहनाज मिलने वाली थी। एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट हमारी तरफ आ रहा था। ये उन फौजियों का कमांडर था जो रेल कार में आए थे। वो सब गोरे सिपाही थे और उनकी तादाद 30 के लगभग थी। वो सब रेल कार से उतर आए और डाकुओं की लाशों को देखते फिर रहे थे। अयूब हिंदुस्तानी सब इंस्पेक्टर था। उसने गोरे लेफ्टिनेंट को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़ा और सामने रुक कर एड़ियाँ ज़ोर से जोड़ी और साहब बहादुर को सैल्यूट किया। उस दौर में गोरे साहब बहादुर को सैल्यूट या सलाम करना एजाज़ समझा जाता था। अयूब ने मेरी तरफ इशारा किया तो लेफ्टिनेंट साहब बहादुर ने सर के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं दौड़ा तो नहीं, तेज़ चलता उस तक पहुंचा। उसने अंग्रेज़ी में बात की। हिंदुस्तानी फ़ौज के अंग्रेज़ अफसर उर्दू बोला करते थे, लेकिन ये लेफ्टिनेंट गोरा रेजिमेंट का था, इसलिए उर्दू नहीं जानता था। हमें ट्रेनिंग के दौरान अंग्रेज़ी बोलचाल की बहुत मशक कराई गई थी। उसने मुझे शाबाश दी। अयूब ने उसे बताया कि मैं पुलिस की स्पेशल ब्रांच का आदमी हूँ और इस ऑपरेशन की कामयाबी दरअसल मेरी कामयाबी है कि मैंने डाकुओं के 2 ख़तरनाक ग्रोहों को उनके सरगनों समेत इकट्ठा किया और मरवा दिया। लेफ्टिनेंट मुझे बादशाहों की तरह खराज तहसीन पेश करके चला गया। अयूब एक कदम पीछे रहकर उसके साथ साथ गया और मैं एक टेकरी पर चला गया। मेरे सामने बड़ा भयानक मंजर था। रेलवे लाइन के दोनों तरफ डाकुओं की लाशें बिखरी हुई थी। कोई लाश ऊंधे मुंह पड़ी थी, कोई पीठ के बल और कोई पहलू के बल पड़ी थी। गोरे सिपाही लाशों को देखते और उन्हें ठुड्डे मारते थे। एक आदमी अभी मरा नहीं था। उसने सर उठाया। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। एक गोरे ने उसके सर के साथ राइफल की नाल रखी और गोली चला दी। उसके बाद उस लाश में हरकत ना हुई। मैंने अयूब को ये भी बता दिया था कि चट्टानों के अंदर 6-7 ऊँट खड़े होंगे, जिन पर गंदम और दालों की बोरियां लदी होंगी, और एक ऊँट खाली होगा। उन ऊँटों को पकड़ लिया गया और उसके बाद लाशों को एक जगह इकट्ठी करने का काम शुरू हो गया। मैं खड़ा देख रहा था। मुझे अयूब ने खराज तहसीन पेश किया था। अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट ने मुझे शाबाश दी थी। अब मुझे DSP और SP से शाबाश मिलनी थी, लेकिन मैं अभी समझने से कासर था कि मैंने अच्छा किया है या बहुत बुरा किया। मैं जब डाकुओं की लाशों को और उनके दरमियान गोरे फौजियों को ऐसे फातहाना अंदाज से घूमते फिरते देखता कि वो लाशों को ठुड्डा मारते, तो मुझे कुछ ऐसे भी महसूस हुआ जैसे मैंने फ़िरंगी आकाओं को खुश करने के लिए अपने लोगों के साथ गद्दारी की हो। मुझे आज तक याद है कि मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ गया, अफसोस सा भी हुआ। फिर मेरा ध्यान शहनाज की तरफ चला गया। मेरा जहन कभी भटक जाता जैसे रास्ता भूल गया हूँ, और कभी ये एहसास बेदार हो जाता जैसे यही मेरा रास्ता है और मंजिल दूर नहीं।
लेकिन धुंध सी थी जो मुझे अच्छी तरह देखने नहीं देती थी कि आगे क्या है। मैं धुंधली राहों पर चला जा रहा था। सब इंस्पेक्टर अयूब मेरे पास आया। उसके साथ 10 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल थे। मेरे पास 2 नाली बंदूक थी और मेरा घोड़ा एक तरफ खड़ा था। मैं शिकारियों के रूप में वहाँ तक गया था। आजा सिकंदर, अयूब ने कहा, अब ये बंदूक मुझे दे दे। उसने मेरे हाथ से बंदूक और कारतूस की बेल्ट ले ली और कहने लगा, आओ तुम्हारे यार के पास चलें, करीब जाकर तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा। अयूब भाई, मैंने कहा, मुझे हथकड़ी लगाएं, मेरे पाँव में बेड़ियां डालें। मैं आपको आखिरी बार कहता हूं कि शहनाज को इधर उधर कर देना। और अयूब भाई, मैं आपको ये भी आखिरी बार कह रहा हूं कि शहनाज से बच कर रहना। अयूब ने कहका लगाया। उस पर फतेह का मूड तारी था। उसे यकीन था कि जिस तरह ये ऑपरेशन कामयाब रहा था, इसी तरह वो शहनाज पर भी फतेह हासिल कर लेगा। मुझे यकीन नहीं था कि शहनाज इस कदर बदल गई होगी कि अयूब को धत्कार देगी। ये मेरा अपना एहसास था। मैंने उसमें कुछ तब्दीली देखी ज़रूर थी। ये भी हो सकता था कि शहनाज अयूब को अपना मुहाफ़िज़ समझ ले। क्लार्क साहब को इतला दे दी है, मैंने डीएसपी के मुतल्लिक़ पूछा। वो आ रहा होगा, अयूब ने मुझे जवाब दिया। उसने वक़्त का हिसाब रखा हुआ होगा। पुलिस की ये नफरी 2 प्राइवेट लारियों में लाई गई थी। लारियों को किसी कच्चे रास्ते से लाया गया था ताकि कोई डाकू या उनका कोई मुखबर पुलिस को ना देख सके। लारियों को कहीं दूर खड़ा किया गया। मैं और अयूब उसके हैंड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों से कुछ दूर खड़े बातें कर रहे थे। मेरी असलियत से सिर्फ अयूब वाकिफ़ था। पुलिस के बाकी आदमी मुझे डाकुओं का आदमी समझ रहे थे। अयूब ने एक लारी मंगवाई और 2 हेड कांस्टेबलों को और 10 कांस्टेबलों को उसमें सवार कराया और मुझे भी अपने साथ लारी में बिठा लिया। कुछ वक्त बाद ये लारी नवाबज़दा हमीदुल्ला खान की जागीर में दाखिल हुई, फिर उस मकान के सामने जा रुकी। उस वक़्त सब इंस्पेक्टर अयूब ने मुझे हथकड़ी लगा ली थी। वो हथकड़ी की जंजीर एक कांस्टेबल के हाथ में देकर खुद लारी से उतर गया। वो मकान के बरामदे में दाखिल हो ही रहा था कि अंदर से हमीदुल्ला निकल आया। उसने अयूब के साथ इस तरह मुस्कुराकर हाथ मिलाया जैसे वो दोनों बड़े गहरे दोस्त हों। मैं लारी में बरामदे की तरफ बैठा हुआ था। हमीदुल्ला और अयूब मेरे इतने करीब थे कि मैं उनकी बातें अच्छी तरह सुन सकता था। क्या खूबसूरत जवान हो तुम भाई, उस हेड कांस्टेबल ने, जिसने मेरी हथकड़ी की जंजीर पकड़ी हुई थी, मुझे कहा। पुलिस में भर्ती हो जाते, फ़ौज में चले जाते, ज़रूर डाके मारने थे। तुम जैसे खूबसूरत जवानों की अंग्रेज़ बहुत कदर करते हैं। तुम मालवे के साथ थे या खादे के साथ? अब भर्ती करवा दो हवालदार साहब, मैंने बनावटी सी संजीदगी से कहा। उसने मालूम नहीं क्या जवाब दिया। मेरे कान हमीदुल्ला और अयूब की तरफ लगे हुए थे। क्या आपका दिमाग ठिकाने है इंस्पेक्टर साहब? हमीदुल्ला अयूब की इस बात का जवाब दे रहा था जो मैंने नहीं सुनी थी। हमीदुल्ला ने कहा, आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि मैं नाम का नवाबज़दा नहीं। जानता हूँ नवाबज़दा साहब, अयूब ने कहा। मैं आपके वालिद साहब को भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो नवाब हैं और आप उनके फ़र्जंद हैं। लेकिन मैं किसी की निशानदही पर आया हूँ। कौन है मेरी निशानदही करने वाला? हमीदुल्ला ने बड़े रौब से कहा। एक तो ज़िंदा सलामत मेरे साथ है, अयूब ने कहा। 2 शदीद ज़ख्मी हैं। वो आपकी निशानदही करके बेहोश हो गए हैं। उन्हें रेल कार पर आगे भेज दिया गया है ताकि उन्हें फ़ौरी तौर पर हस्पताल पहुंचाकर उन्हें ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि वो इस केस में नहायत अहम गवाह हैं। अगर आप खुद नहीं मानेंगे तो उनमें से किसी एक को सुल्तानी गवाह बना लिया जाएगा। क्या आप वो इंस्पेक्टर हैं जो इस इलाके के थाने में SHO लगे हैं? हमीदुल्ला ने पूछा। जी हाँ, अयूब ने जवाब दिया। मैं वही नया SPHO हूँ और मैं वो सब इंस्पेक्टर हूँ जिसने सवाए 3 के आपके तमाम आदमी मार डाले हैं। आप गालबन इस इत्तला के इंतज़ार में होंगे कि रेल कार को बड़ी कामयाबी से लूट लिया गया है और माल आपके पास पहुंच रहा है। लेकिन आपकी किस्मत ऐसी उल्टी कि रेल कार में ख़जाने की बजाय गोरा रेजिमेंट के 20-25 आदमी आ गए, जिनका कमांडर एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट था। रेल कार रुकी।
रेल कार रुकी, आपके आदमी उसकी तरफ दौड़े। आगे से राइफलें और मशीन गन्नें चली। पीछे से मेरी पुलिस फोर्स ने आपके आदमियों को घेरे में ले लिया और सब को ख़त्म कर दिया। मैंने देखा कि हमीदुल्लाह के चेहरे का रंग बदल गया था और वो बातों और हरकतों से अपनी नवाबी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। वो अयूब को डांट रहा था। अयूब उसी इलाके के थाने का SHO लगा था। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए हमीदुल्लाह के साथ उसकी पहली मुलाकात नहीं हुई थी, वरना अपने इलाके के थानेदार को हमीदुल्लाह अपनी मुट्ठी में रखा करता था। थाना हमीदुल्लाह की जागीर से कई मील दूर था। उसके तहत पुलिस चौकियां थी। ऐसी एक चौकी जागीर के करीब थी। इसे इधर लाओ, अयूब ने हेड कांस्टेबल से मेरे मुतल्लक कहा। मुझे लारी से उतारकर हमीदुल्लाह के सामने खड़ा कर दिया गया।